आज 5 জুলাই সকাল 6টা বাজে মেজিয়া থেকে রওনা দিয়েছি অন্ডাল আর দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে। Now it is 8:30. Now I am approaching the Railcom Road bridge on Damodar River. This bridge was constructed by DVC only. The rail bridge is being used by DVC for transporting coal to Mejia Thermal Power Station. You can see the number of people commuting by bicycle from the Bankura district to कितना दूर? अंडाल होके दुर्गापुर होके कलकत्ता। कलकत्ता जाएगा हाँ हाँ साइकिल से? हाँ, हम तो झारखंड से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहा है। कोडरमा से। ये ट्रिप है। ये डीवीसी का है। हाँ। डीवीसी का 75 सालगिरह में मेरा ये छोटा सा श्रद्धांजलि है। डीवीसी का? हाँ, अंडल डीवीसी। आई वॉज द एम्प्लॉय ऑफ डीवीसी। हाँ। तो बस ठीक है, डीवीसी के प्रति मेरा लव अफेक्शन। ठीक है, आगे चलिए, सेल्फी हो जाए। हाँ सेल्फी होगा। हाँ, हो सकता है। सी लव and affection from the people. This is the bridge over Damodar River. On my last 4 days trip, I had to get down from my cycle to give my photos to several people. And at the same time, I'm explaining to them why I'm taking so much of pain. It is only and only for love for DVC. कल बहुत बड़ा घटना हुआ है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। I met a young boy. He was riding a electric bicycle. I was taking some dry food under a shade of tree. The boy stopped and talked to me for 1 hour. He was previously a radio jockey. He made a video and finally he touched my feet and told me that you people are the inspiration for this young generation. क्या नाम हुआ आपका? राजेश बनर्जी। কোথায় যাচ্ছো কাজে? কাজে। কোথায় কাজ করো? জামুড়িয়া। জামুড়িয়াতে? আচ্ছা, ঠিক আছে, এগো। থ্যাংক ইউ। I am so surprised that my photos has been uploaded by so many people in their Facebook page. It can clearly display the DVC logo and 75 years of logo. So my objective, my mission is fulfilled. I want to make people aware of the DVC. So I believe that I have done it, and in the rest of my journey I will try to inform more people about my mission. So CISF guy has told me to come through this gate. Oh God. देखिए, ये 2 झंडा हमको 450 किलोमीटर पार कराया। अभी और 200 किलोमीटर बाकी है। हाँ हाँ, हम आ रहे कोडरमा प्लांट से at the age of 62. Jai Hind. So they also shown respect to me
I am now gradually approaching the DSTPS plant at Andal. after long time I am entering this premise. I have already entered the हाँ থ্যাংক ইউ। এতটা পথ অতিক্রম করে আজ আমাদের মধ্যে রয়েছেন। ওনার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে গত 75 বছরে ডিভিসি দেশের উন্নতির জন্য কি কি করেছে সেটা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, এবং এটাতে উনি অত্যন্ত সফল। আজ আসুন আমরা সবাই মিলে তাকে স্বাগত করি, হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানিয়ে তারই কাছ থেকে তার অভিজ্ঞতার কিছু কথা শুনি। আমি বিশ্বজিৎ সেন, আমি 2018 সালে অ্যাজ এ সিনিয়র জয়েন্ট সেক্রেটারি ডিবিসি থেকে আমি বিআর নিয়েছি। তো আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি সেকেন্ড জেনারেশন ডিবিসি, মাই ফাদার ওয়াজ অলসো এজ এ ডিবিসি এমপ্লয়ি। সো আই বিলিভ কি আমি যতখানি ভালোবাসি ডিবিসিকে, হয়তো খুব কম লোকই আছে যারা এত ডিবিসিকে ভালো। আমি ছোটোবেলা থেকে ডিবিসিকে দেখে আসছি। তো যখন আমি জানলাম যে ডিবিসি 75 ইয়ার্সে সেলিব্রেশন খুব ধুমধাম করে হচ্ছে, তো তখন আমার একটা মনে হলো আফটার মাই রিটায়ারমেন্ট সাইক্লিং ইজ মাই সিরিয়াস হবি। হ্যাঁ, মানে আমাদের প্রচুর সাইক্লিংয়ের বড় গ্রুপ আছে, তাদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় আমরা ঘুরে বেড়াই। তো আমার মনে হলো যে এটাকে ইস্যু করে, এটাকে একটা বেস করে আমি ডিবিসির জন্য কিছু করতে পারি। তো সেই হিসাবে আমি এটাকে করলাম যে ঠিক আছে, তাহলে আমি একটা ডিবিসি ট্রেল, আমি একটা সাইক্লিং করব সোলো, যেটা শুরু হবে डीवीसी যেখান থেকে শুরু হয়েছে, जहाँ से तिलैया से शुरू करके जहाँ डीवीसी का हेडक्वार्टर है वहाँ तक हम जाएंगे सोलो साइकिलिंग करके। और मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि हम जो ऑब्जर्व कर रहे थे, डीवीसी जो सेलिब्रेशन कर रहा है, डोंट टेक इट अदरवाइज, तो ऑल दी सेलिब्रेशन आर लिमिटेड टू दी प्लांट्स एंड हेडक्वार्टर्स साइंस सिटी ओनली। सो आई थॉट कि डीवीसी की जो कंसर्न आदमी है, झारखंड के जो डीवीसी कमांड एरिया जहाँ से शुरू होता है तिलैया, वहाँ से वो मेन जो अफेक्टेड सफरर थे, जिसको डीवीसी के साथ डे टू डे एक्टिविटी उसका लाइफ जुड़ा हुआ है, तो उनके बारे में डीवीसी को कैसे हम पहुँचाए कि डीवीसी का क्या रोल अभी तक रहा है। तो मैंने ये बीरा उठाया, तो मैंने साइकिल कलकत्ता से लेके तिलैया तक गए। तो तिलैया एका आमी एका, तो अरे मेरे जैसे पागल थोड़े मिलेगा ऐसा कुछ। तो मैंने साइकिल उठा के तिलैया ले गया, तो मैंने गाड़ी को छोड़ दिया। फिर तिलैया में हम 6 साल काम किए। मैंने तिलैया में, मेरा ये गढ़ है तिलैया में 10 किलोमीटर रेडियस में कहीं भी कोई भी आदमी मुझे जानता है। तो वहाँ के आदमी हमको इतना सपोर्ट किया, इतना आशीर्वाद किया कि हम बोले कि आप लोगों का आशीर्वाद से, আপনাদের আশীর্বাদে, আপনাদের গুড উইশেসে আমি ঠিক কলকাতা পৌঁছে যাব। তো 30 তারিখে ওখান থেকে আমি আমার সাইক্লিং যাত্রা শুরু করি। ওখান থেকে হাজারিবাগ থেকে কোনার থেকে বিটিপিএস থেকে সিটিপিএস থেকে পুটকি, দেন ভায়া ধানবাদ টু মাইথন, দেন মাইথন টু योर पंचायत टू MTPS. Now today I am at DSTPS. Tomorrow today I will go to DTPS, and tomorrow I have a very long journey, 150 किलोमीटर मुझे कवर करना है, and I will definitely reach DVC Towers by 10:30 on 7 July. अच्छा, इस लास्ट 4 डेज का जो हमारा साइकिल का ये सफ़र रहा, मैंने पता नहीं, मैं ये साइकिल यात्रा को डेडिकेट करता हूँ आम जनता झारखंड के और बिहार के, बंगाल के, जो मुझे इतना सारा सपोर्ट दिया, हमको कभी नहीं लगा कि हमारा अगर कुछ होगा तो वो ज़रूर हमको बचा लेंगे। यू वोंट बिलीव, मैंने आते आई बिकम सो पॉपुलर इन झारखंड, इतना पेपर में निकला, प्रेस, स्पेशली द प्रेस पीपल हमको इतना सपोर्ट किया कि झारखंड में तो हम छा गए। सेकेंड डे से ही हमको पहचानने लगा झारखंड के रास्ता से, अरे यही आदमी है, तो यही तो कल पेपर में निकला था। तो कम से कम 150-200 बार हमको साइकिल से उतरना पड़ा कि उसको सेल्फी देने के लिए। कोई तो रील बना रहा है, कोई ये कर रहा है। कल की एक घटना है, हम सालतोरा से आ रहे थे, तो एक लड़का मिला मुझे, वो शायद रेडियो जॉकी था वहाँ, तो वो भी साइकिलिंग का थोड़ा एंथुसियास्ट है। तो उसने मुझे बात करते करते
इतना इम्प्रेस्ड हो गया, इज ए यंग गाय, इज ए इंजीनियर, ही टच्ड माय फीट एंड बोले कि गुरु आप हमारे इंस्पिरेशन है। हाँ, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था ना कि डीवीसी को एकदम फाड़ देना है झारखंड में, सब आदमी जाने कि 75 डीवीसी का हो रहा है, तो ये बढ़ता, तो मुझे लगता है कि आई एम सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग द मैसेज कि डीवीसी 75 साल तक जिंदा है। इट प्रूव्स कि डीवीसी हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग इनर स्ट्रेंथ। और सबसे मेरा ये अनुरोध था कि डीवीसी को बचा कर रखना है और आगे लेके जाना है। हाँ, ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र। Now I'm approaching Durgapur Thermal Power Station at Durgapur. This is a very old plant, and you can see on my right side the coal rakes are standing there. I am now going to Director's Bungalow. DGM Durgapur has informed me that he has arranged accommodation at Director's Bungalow. I am entering the Director's Bungalow. HOP साहब से अनुरोध करूंगा कि इनका स्वागत करें। सब कुछ पुराने कुछ नए चेहरे हैं, आपके परिचित भी हैं, कुछ अपरिचित भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं 30 तारीख को तिलैया से चला हूँ, तो 30 तारीख को तिलैया से चल के मैं हजारीबाग से कोलार से फिर आगे हम बढ़ते गए। तो मेरा टाफेक्स जो जर्नी था वो था झारखंड का वो जो एरिया, जो पहाड़ी क्षेत्र, तो वो तो हम पार कर चुके थे। अब तो प्लेन में आगे हमारा जन बज गया। हाँ, जैसे कि आप शायद देखे होंगे कि बढ़ी से हजारीबाग जो नेशनल फॉरेस्ट के अंदर जो रास्ता है वो कंटिन्यूअसली अपहिल है। तो उसमें साइकिल चला के हजारीबाग तक पहुंचना, मतलब मुझे लगता है हम तो रेगुलर लास्ट 8 ईयर्स अब साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उतना टफ जगह में ट्रेल में कब हम साइकिल नहीं। फिर जब हजारीबाग से हम कोलार जा रहे थे, अब शायद देखे होंगे बीच में 7-8 किलोमीटर डेंस फॉरेस्ट है। और वो 3-4 साल पहले तो CRPF छोड़ के कोई उसमें जाता नहीं था उस रास्ता में, इतना खतरनाक 22 स्टेट एरिया था। तो हम जाते जाते करीब 3 बजे वो अचानक बादल पूरा छा गया, अंधेरा हो गया, ऊपर से भयंकर लाइटनिंग होने लगा, पानी बरसने लगा। उस हालत में हम साइकिल में अकेले जा रहे हैं। अब मुझे खड़ा होने का कोई जगह नहीं है कि हम कहीं जाकर हम खड़ा रहें। तो आप शायद देखे होंगे कि उस सरकार ने आज से 20-25 साल पहले पैसेंजर शेल्टर बनाता था रास्ता के बगल में, जो अब टूटा पड़ा हुआ है। और उसमें मोस्टली जो गाय चरती है ना, उसका शेल्टर है। तो अंदर में वो काउडांग से भरा हुआ, तो मेरा कोई रास्ता नहीं था। उसी में हम 1.5 घंटा किसी हालत में अपना सर बचाए कि लाइटनिंग से अपने बचे, फिर हम आगे बढ़ते गए। ये तो मतलब सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन है कि वो जो आम जनता ऑफ झारखंड एंड बंगाल जो मेरे पीछे रॉक सॉलिड खड़ा था। हमको कभी नहीं लगा कि हमारा कुछ हो जाएगा तो हम किसी जगह में मेरा ये होगा। हर एक जगह इतना ज़्यादा रिसेप्शन हुआ। फर्स्ट डे के बाद झारखंड का पेपर में इतना ज़्यादा न्यूज़ आने लगा। बाई सेकेंड डे, बाई 1 जुलाई आई बिकम दी सेलिब्रिटी ऑफ झारखंड। रास्ता में आदमी मुझे पहचान रहे थे कि अरे इसी आदमी का तो फोटो कल प्रभात खबर आज से लेकर रांची एक्सप्रेस सब में छपा है। तो हमको बार बार साइकिल से उतरना पड़ा था, आदमी को एक्सप्लेन करना पड़ा था क्यों हम जा रहे, क्या मेरा मिशन है, और बार बार हमको दूसरे के साथ सेल्फी देना पड़ रहा था। तो किसी ने बोला था थोड़ा रील बनाएंगे, हम बोले बनाओ भाई, हमको तो तुमको शाहरुख खान बना दिया पूरा, तो रील बनाना है तो रील बनाओ। तो फिर करते करते हम लोग हमको अभी थोड़ा आगे बढ़ने दो, हमको जाना है काफ़ी रास्ता में कहीं भी रुके तो सब आदमी ने जिसका जहाँ घर है या दुकान है बोले सर आप मेरे घर में खाना खा के जाइए, नहीं तो मेरे दुकान में आप नाश्ता करके जाइए। तो ये करते करते तो हम आगे बढ़े। लाइफ का फर्स्ट हम तिलैया में CSR के सही
वो मेरा गढ़ है, तिलैया कोनार मेरा गढ़ है, मैंने वहाँ शैतान भी मुझे टच नहीं कर सकता है। तो हमने जब मेरा जो भी लागेज था लिमिटेड लागेज था, मगर वहाँ के आके मुझे इतना खाना लिट्टी से लेके वो आम का अचार दे दिया कि शहर का कोई रास्ता में दिक्कत है, वो बिना भूखे ना रात में सोए वो कहीं मैंने भूखे ना रह जाए, तो उसको हम फेंक नहीं सकते, उसको हम धो रहे हैं। रास्ता में जा रहे हैं, जिस गांव में जब जानकारी हुआ कि सेन साहब जा रहे हैं, तो उस गांव में जितना विलेजर्स है, स्पेशली एक्चुअली डेवलपमेंट प्रोफेशन होने के नाते मैंने महिला लोग से ज़्यादा काम किया है, तो सब दीदी लोग रास्ते में खड़ा होके मुझे आशीर्वाद कर रहे थे कि आप सही सलामत आप पहुंच जाएंगे। ऐसा एक्सपीरियंस है। रिमोटेस्ट विलेज ऑफ द तिलैया, जहाँ गरीब से गरीब आदमी डेली मेरा फ़ोन करके हमको मेरा खबर लेते हैं कि सर ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक से तेल मालिश कीजिए सर, सब हो जाएगा, और ऊपर वाले का ये है, आप पहुंच जाइएगा। तो हमारे बीच में मेरे साइकिल में 2 फ्लैग है, एक नेशनल फ्लैग और डीवीसी का फ्लैग, वो हमको खींच के ले जाएगा टावर। बीच में बहुत सारे डीवीसी के एक्स एम्प्लॉय, डीवीसी के होम गार्ड, डीवीसी के एम्प्लॉय के वार्ड मिले, वो डीवीसी फ्लैग देख के पीछे बहुत बड़ा डीवीसी लिखा हुआ, वो देख के पहचान गए कि ये डीवीसी का आदमी है। तो हर जगह मुझे ऐसा रॉक सॉलिड सपोर्ट मिला कि हम तो मेरा जितना दुख दर्द कष्ट सब हम भूल गए। मेरा एक ही मिशन है, 7th को हमको हेडक्वार्टर पहुंचना है, मेरा मिशन एक्सप्रेस हो जाए। मगर जो मेरा ऑब्जेक्टिव था ना कि डीवीसी को झारखंड में एकदम फाड़ देना है, वो मैंने कर चुका हूँ। झारखंड के लाभ मेरे पास इतना पेपर क्लिपिंग्स है कि मेरे पास रखने का जगह नहीं है। जब एक रिपोर्टर, आपको एक रिपोर्ट करने के लिए रिपोर्टर का पीछे पड़ना पड़ता है कि बॉस थोड़ा मैंने ये रिपोर्ट कर दो, वो रिपोर्टर सब मेरा पीछे पड़ गया कि सर थोड़ा बताइए कहाँ से आए, कहाँ आए, क्योंकि उसको न्यूज़ जो वैल्यू उसके अंदर उसको दिखाई पड़ रहा है। तो वो न्यूज़ वैल्यू देख के वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं, हमने ठीक है हो गया, आपका पेपर तो बहुत छाप दिया, आप ठीक है, आप तो जो करना था झारखंड के आदमी मेरे बदौलत जान गए कि 7 जुलाई डीवीसी का 75th फाउंडेशन, वो शायद डीवीसी 4 करोड़ रुपया खर्चा करके भी नहीं कर सकता, जो शायद हमने वो नहीं कर सकता था।